Professor Anuj Maheshwari is the Secretary General, Indian. So much of as all of you know, Sir Anuj Maheshwari, please. Kashmir, because they are also having the similar kind of the temperature also in the RSSDI as well as in the Indian society. They are also presenting their papers multiple places, lot of reviews and lot of meta-analysis. आज ये जो स्किम्स मेडिकल कॉलेज ने ये दिन हाइपरटेंशन के बारे में ये कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। जैसा आपने कहा अपने सवाल में कि हाइपरटेंशन किडनी को भी इन्वॉल्व करता है 100%। हाइपरटेंशन और किडनी जिस पे मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हाइपरटेंशन खुद किडनी की डिजीज़ कर सकता है और किडनी की डिजीज़ की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये एक दो तरफा, और किसी पेशेंट को जिसको किडनी डिजीज़ हो, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब रहता है उसके मुकाबले जिनको खाली हाइपरटेंशन हो या खाली किडनी डिजीज़ हो। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है और उसको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन है जो कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक जानलेवा भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ आज ये बोल रहे हैं कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है दुनिया में, हमारे मुल्क में और हमारे कश्मीर में भी, क्योंकि कश्मीर का जो एक रीज़न है कि सॉल्ट का इंटेक यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइपरटेंशन की इंसिडेंस और प्रेवलेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो उसको चांसेस है कि उसको किडनी की डिजीज़ भी हो सके। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन डायग्नोज हो वो फौरी अपने डॉक्टर साहब के साथ जाना चाहिए ताकि उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले जैसा कि डॉक्टर साहब उनको बोले। और उसके साथ साथ पहली मेडिकेशंस के पहले उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होती है, उसको डाइट में चेंजेस करनी होती है, साल्ट का कंटेंट कम करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, एक्सरसाइजेज करनी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उस चीज़ से हाइपरटेंशन ठीक ना हो तो उसके बाद ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन जो है जो डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे वो लेनी पड़ती है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वर्सेस दोज पेशेंट्स जिनको किडनी की डिजीज़ नहीं है। तो उसमें एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो इनको लाजमन देना पड़ता है, जिसको हम डायरेटिक्स बोलते हैं। तो ये डायरेटिक्स इस पेशेंट को जिसको किडनी डिजीज़ हो या हाइपरटेंशन हो तो उनको लाजमन लेना पड़ता है। ARBs are safer, tolerant, more efficient. ACE inhibitors may be preferred as first-line treatment agent in patients. Because there is nothing myth in hypertension and CKD. There may be myths in hypertension per se, there may be myths in CKD. But once you combine this together, there is no myth, there is only reality, and I will be just discussing the reality and the realities. So, this has been told that hypertension epidemic is there, and the only thing I just want to tell you is that 2/3 of these people who are living with hypertension live in low and middle income countries. And the guidelines which we get, as Dr. Narsingan and my previous speaker told, they come from... Firstly, this use of ACE and ARBs, they've been underutilized. And this 20% thing is a good thing to follow, but who laid it, nobody knows it. Because whatever potassium we see when we get tests done, so it gives you a static record of a dynamic process. But does it mean that we should not give this? No, we should go ahead with it. So what should we tell our people, especially the ones from horror places? Okay, you can skip the draft, because in patients on ACRBs with or without spironolactone, which we give in exceptional circumstances and heart failure and other conditions, the blood flow, the potassium dependent. And kidneys always give preference to volume than to electrolytes and acid base. So the proximal tubule starts retaining all the sodium, and there's no net sodium delivery to the distal tubule, so there's no net excretion of hyperkalemia. It could be life-threatening. So it's a simple statement that the same thing about SGLT2 inhibitors. I know the cardiologists use it, overuse it, but they never tell the patients, okay, why they have to just stop it. Yeah, it makes a lot of difference. Thank you. ये इवेंट जो था ये हाइपरटेंशन पे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम था, जो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आफ्टर एवरी 10 years द एजुकेशन चेंजेस। 50% ऑफ द साइंस विच वी आर बीइंग टॉट, जो हमें पढ़ाया जाता है, 10 साल के बाद वो चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। और ये हाइपरटेंशन भी था जो बहुत ही कॉमन है कश्मीर में, ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
नंबर सेकंड जो उसमें होता है कि यू हैव टू डिसिपेट द नॉलेज शेयर करनी होती है। तो इस मौजू के साथ हमने इस एम के साथ ये हमने यहाँ पे करना, इसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अनुज और ट्रेजरर, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और बात थी कि इसमें वर्ल्ड हाइपरटेंशन कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस.एन. नरसिंगम, वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी है, वो खुद आए थे। हालांकि ही इज़ वेरी बिजी इन अरेंजिंग द वर्ल्ड हाइपरटेंशन कांग्रेस इस साल जो नेक्स्ट साल जो मार्च में है। सो ही ऑल्सो केम एंड ही उसने हमारा मोरल बहुत इंक्रीज़ किया एंड ऑन वेरियस टॉपिक्स डिस्कस हमने किए कि रिगार्डिंग हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और जो डिफ़िकल्टीज जो फेस होती है हमारे पेशेंट्स में, हाउ टू मैनेज दोस थिंग्स। इसमें एक टॉपिक ऐसा भी था, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, कैन वी हैव अ कॉमन ड्रग विच वी कैन ट्रीट बोथ हाइपरटेंशन डायबिटीज़। तो उसी के मतलब बात हुई और उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात, कब देना है कब नहीं देना है। इसका बेसिक मकसद यही होता है कि जब पेशेंट का पिल बर्डन हो किसी हालत में कम हो जाए। तो ओवरऑल मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि जैसे हाइपरटेंशन की रेट बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल मैसेज यही है कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। अगर हम अपने वादी में किसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर देखो, वो सवाल करता है क्यों मैं देखूं ब्लड प्रेशर, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ये उनको समझाना है कि ब्लड प्रेशर इज़ द किंग ऑफ द ऑल डिजीजेस, इट डजंट कम विद अ साइन बोर्ड। अच्छा साइन कहीं ना आसान, ओनली 5% आर वेरी लकी पीपल, इवन तारान फिक्री, हु नो दैट यस वी हैव सम साइन। नंबर सेकंड पॉइंट है इसमें कि मॉनिटरिंग करना है अपना ब्लड प्रेशर, आपको एक मॉनिटर करना है हफ्ते में या 2 हफ्ते के बाद ज़रूरी। इट्स नॉट लाइक दैट यू टेक इट, आपने अभी कोई टैबलेट खाई उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो गर्मियों में, समर में ब्लड प्रेशर एक किस्म का रहता है, और सर्दियों में बिकॉज ऑफ आवर डाइट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ये शूट अप हो जाता है। सो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका यही इसमें मैसेज है कि बीपी की दवाई खाते रहिए और बराबर इसको मॉनिटर करते रहिए।